सो इस 8 अध्याय को हम 4 भाग में बांट सकते हैं. वी कैन डिवाइड दिस 8th चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स. 8वें अध्याय 4 भाग में बांट सकता है. चैप्टर 8 का आउटलाइन. फर्स्ट, दिखाई दे रहा है पीछे तक? पहला भाग है. कितना वर्सेस है 8 अध्याय में? हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन चैप्टर 8? 27 verses are there. Verses 1 to 2, it is the setting of the vision. Setting of the vision मतलब किस पृष्ठभूमि में ये विजन दिखाया गया है, या कहाँ, किस टाइम में, कहाँ, कौन सा संदर्भ में दानियल ने ये विजन देखा. ये है सेटिंग. सेटिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, पृष्ठभूमि. तो सेटिंग ऑफ द विजन. कोई पढ़ो 1 and 2, verses 1 and 2. In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me. Daniel after that, which appeared to me at the first, and I saw in the visions, and when I saw, I was so Susa, the citadels which is in the province of Elam. Yes. So in the 2 words it is written, when did Daniel receive this vision? It is in the 3rd year of King Belshazzar. तो सेटिंग में क्या क्या आता है? कौन सा ईयर ये विजन देखा, कौन सा संदर्भ में, कौन सा जगह में, ये सब आता है सेटिंग, जो संदर्भ, पृष्ठभूमि विजन का. सो द विजन हैपेंड इन द 3rd year of King Belshazzar. When did the vision in 7th chapter occurred? It is in the 1st year of the vision of chapter 7. Daniel saw that vision in the 1st year of Belshazzar. The vision of the 8th chapter is in 3rd year of the reign of the rule of Belshazzar. Which is the place in which Daniel saw this vision? It is in Susa. Susa is the capital of Persian Empire. But Belshazzar is the king of Babylonian Empire. Belshazzar कौन सा एम्पायर का राजा है? बाबिलोन का लास्ट राजा है. तो दानियल बाबिलोन में था, पर दर्शन में कहा गए? सूसा, जो आने वाला एम्पायर का राजधानी. सो Belshazzar is the king in Babylonian Empire. So Daniel was physically living in Babylon, but in vision he was taken to Susa, which is the capital of Persian Empire. So Persian rule didn't begin during the time of this vision. At this time also Babylon is ruling. ये समय में भी बाबिलोन एम्पायर राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे. पर क्या है, विजन में आने वाले बातों को दिखाने के लिए दर्शन में, इन विजन डैनियल इज टेकन टू द फ्यूचर मीन सूसा. सूसा इज द कैपिटल ऑफ द पर्शियन एम्पायर. तो दर्शन में कहा गए सूसा में. यह है संदर्भ. So this is the first division, the setting of the vision. Vision कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब. Second is the contents of the vision. Content मतलब क्या है? उसके अंदर क्या लिखा गया है? विजन के अंदर क्या क्या है, ये है कंटेंट्स. हम बोलते हैं ना, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर सुना होगा. कंटेंट मतलब क्या है? विजन के अंदर क्या क्या बताया गया है, डिटेल्स, विजन्स का डिटेल. कंटेंट्स ऑफ द विजन. वर्सेस 3 to 14, 3 से 14 तक कंटेंट्स ऑफ द विजन. Third part is the interpretation. Interpretation of the. Interpretation मतलब क्या है? ये विजन है, जैसे दानियल ने जो विजन देखा वैसे ही लिखा है. ठीक है. इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, उसका मतलब. इंटरप्रिटेशन जब मीनिंग जो बताता है वर्सेस 15 से 26 तक.
तो 3 verses 3 to 14, it is the content of the vision. The vision is placed just as Daniel saw it. The third division is interpretation of the vision. One angel is telling the meaning. Like in chapter 7, in the first vision of Daniel, in chapter 7, an angel is telling the meaning of the 4 beasts and the little horn and the Son of Man. Who is interpreting the dream? Who is telling the meaning of the dreams? An angel is explaining. Like that, again, angel, in 7th chapter, an angel is telling to Daniel, but in 8th chapter, we see 2 angels are talking to each other about these things, and one angel is explaining the vision to Daniel. So that is the third, interpretation of the vision or meaning of the vision. The fourth part, impact. इसका जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं. इम्पैक्ट मतलब क्या है? ये विशन के बाद दानियल को क्या हुआ? इम्पैक्ट मतलब क्या है? हिंदी में क्या बता सकते हैं? हाँ, कैसा असर पड़ा दानियल के ऊपर? दानियल क्या हो गया? बहुत बीमार जैसे हो गया, डर गया. दानियल का हालत. इम्पैक्ट ऑन दानियल. इम्पैक्ट ऑफ विशन ऑन Daniel. So इतना है chapter 8 में. The first part is setting of the vision, verses 1 to 2. Second part is contents of the vision, verses 3 to 14. Third part is interpretation of the vision, which is verses 15 to 26. Fourth is just one verse, that is the impact of vision on Daniel, verse 27. अभी setting. सेटिंग ऑफ द विशन में क्या क्या है हमने देखा? कौन सा है? थर्ड ईयर ऑफ किंग. ये लगभग 550 कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे 550 बीसी, कुछ लोग बोल रहे 547. कोई भी डेटिंग, कोई एक डेट लिख सकते हैं, 550 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में. कुछ लोग बोल रहे 550, कुछ लोग बोल रहे 557. लगभग डेट पता करने के लिए, ये नहीं ये याद करना है, आप लोग ये लिख सकते हैं. तो लगभग इस साल में 550 में बेल्शस्सर का तीसरा ईयर में क्या हुआ? ये विशन दानियल. तो सेटिंग कहाँ है? बाबिलोन में हुआ. बेल्शस्सर कहाँ का राजा है? बाबिलोन, प्लेस ऑफ विशन. बाबिलोन में दानियल वास इन Babylon. Taken to Susa. Capital of दानियल बाबिलोन में था, पर विशन में क्या है? टेकन टू सूसा, द कैपिटल ऑफ अपकमिंग पर्शियन एम्पायर. अपकमिंग पर्शियन एम्पायर मतलब आने वाले पर्शियन एम्पायर का कैपिटल क्या था? सूसा. टेकन टू सूसा इन विशन. विशन में कहा था? फिजिकली बाबिलोन में था, पर विशन में कहा था? सूसा में, जो आने वाला पर्शियन एम्पायर का कैपिटल होने वाला है, उस जगह में लेके गए. उधर और भी कुछ नाम, उलाई करके एक नदी के बारे में बताया है, और भी डिटेल्स है, पर छोटे रूप में कहा है सूसा में जाकर खड़ा किया दानियल को. उधर
जो कुछ दर्शन हो रहा है उधर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जो आपको जितना समझ में आएगा छोटे छोटे रूप में लिख सकते, बाद में आप सही लिख सकते। थर्ड ईयर ऑफ किंग बेल्शास्सर, बाबिलोन में था दानियल। विशन में कहा पहुंचाया दानियल को? सूसा में, जो आने वाला पर्शियन एम्पायर का कैपिटल बनने वाला है। अभी सेकंड, कंटेंट्स ऑफ द विशन। विशन का कंटेंट कहाँ देखते हैं? 3 से लेकर 14 में। आप लोग बाद में विशन पढ़ के देख सकते। मुख्य रूप में ये विशन के बारे में जानना है तो कंटेंट ऑफ द विशन, सेकंड जो हेडिंग। अभी कंटेंट के बारे में अगर कुछ वर्सेस लेके आपको पता चलना है तो 9 to 19 वर्सेस में कंटेंट है। ये वर्सेस तो है, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या क्या हुआ बड़े रूप में दिया है वर्स 3 से लेकर 14 में। पर कंटेंट आप पर्टिकुलरली, मतलब जो राम और गोट के बारे में आपको, मतलब उसी दोनों जानवर के बारे में जानना है तो 9 से 19 तक वो कंटेंट आपको मिलेगा। उसका मतलब कहाँ मिलेगा? 23 से लेकर 26 तक उसका मतलब भी बताया गया है। तो ये छोड़ दो, आप चैप्टर पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। अभी क्या क्या कंटेंट है उधर? कंटेंट है एक तरफ एक राम को दिखाई दिया, दूसरे तरफ तो पहला दर्शन, पहले राम को देखा। राम के बारे में क्या लिखा है? राम बेड़ है। पढ़िए वर्स 3 पढ़िए हिंदी। फिर मैंने आँख उठा कर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। मेढ़ा हिंदी में लिखा है। मेढ़ा सबको आता है वो शब्द? मेढ़ा बोलते हैं? मैडम नहीं, मेढ़ा बेड। तो मेढ़ा, बेड और मेढ़ा एक है? दोनों एक है हिंदी में, ठीक है। तो मेढ़ा, राम मेढ़ा है, हिंदी में मेढ़ा लिखा है। उसका कितना सिंग था? 2 सिंग था। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, एक इधर, दूसरा उससे ज्यादा लंबा था, ऐसे ही लिखा है ना। दूसरा सिंग ज्यादा बड़ा था। ये सिंग किसको दिखाता है? मेदिया। दूसरा पर्शिया। मेदिया, जो ये वाला सिंह छोटा है, क्यों? क्योंकि पर्शिया इससे भी शक्तिशाली है। पर्शिया का राजा कौन था? साइरस आकर मेदिया को क्या किया? हराया और अपने साथ जोड़ दिया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? मेदिया वाज लेस स्ट्रॉन्गर देन पर्शियंस। पर्शियन किंग साइरस, आई टॉट यू द हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था। द पर्शियन किंग साइरस केम एंड ही डिफीटेड मेदिया while Astyages was ruling in Media, and he joined Media to the Persian kingdom. So it together formed one empire, Medo-Persian Empire. So Media was less stronger, that's why small horn is given to Media. Persia's horn is longer, which shows the power of Persian, the strength of Persians is higher than that of imagine a ram with one small horn and one. So normally we cannot imagine. Yeah, the shape and size of the horns are different in goats, but one horn is small, another horn is. It is not talking about real ram. In vision, apocalyptic vision is like this. It shows unusual imageries. When we studied about the features of apocalyptic literatures, the imageries are unusual.
जब मैंने अपोकैलिप्टिक विजन्स के बारे में पढ़ाया, एक पॉइंट ये था, 5 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये था, अनयूजुअल इमेजरी, मतलब जो हम आमतौर पर नहीं देखते हैं ऐसा विजन्स दिखाता है। तो रैम में एक मीडिया है, दूसरा पर्शिया है। ये मेडो पर्शियन, मेडो पर्शियन एम्पायर। ये राम क्या है? मेडो पर्शियन एम्पायर। तो छोटा सिंह मेदिया, दूसरा ये ऐसे लिखते समय मीडिया नहीं पढ़ना, मेदिया है, ठीक है। मेडो पर्शियन एम्पायर लगभग 200 साल क्या है, बड़ा एक शक्ति के रूप में, एक एम्पायर के रूप में रहा इस दुनिया में। कब से लेकर 539 में बाबिलोन को हराया, तब से लेकर 323 तक, जब अलेक्जेंडर आकर कब्जा किया। तो इतना साल कौन राज कर रहे थे? मेडो पर्शियन एम्पायर। आपका हिस्ट्री में मैंने दिया है, 539 में साइरस आकर बेल्शस्सर के समय पर बाबिलोन पर हमला किया, बाबिलोन को कब्जा किया। इन 539 Cyrus, the army of Cyrus came and conquered Babylon. From that time till 323, around or more than 200 years, more than लगभग लिखा है मैंने 200 years। तो 323 में क्या हुआ? अलेक्जेंडर आकर मेडो पर्शियन एम्पायर को हराया। So around more than 200 years history is there in this vision. Now the second. So the first, the ram is given in the vision. Then ram, about ram it is written, it is very powerful, it is conquering the other nations and nobody was able to stand before it. ये ram के बारे में लिखा है, वो बहुत शक्तिशाली है। In verse 3 and 4 it is written, you can read it later when you go to room as a homework, you can read. So about ram it is written, it is very powerful, it is devouring, capturing other nations and nobody was able to stand before it. कोई भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, इतना शक्तिशाली था। वो सबको क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे। अभी उस समय क्या हो गया? गोट आ गया। गोट मतलब बकरा, एक मेल गोट, बकरा आ गया। बकरा का कितना सिंग था पहले? शुरुआत में एक सिंग था, उसके बारे में लिखा है ग्रेट हॉर्न, मतलब बड़ा एक सिंह था। वो कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब विशन में इस बकरे को पहले बार दिखाया, उसका एक सिंह था, वो बहुत बड़ा या बहुत शक्ति मतलब स्ट्रॉन्गर एक सिंह था। When the goat appeared first time in the vision, it had only one horn which is very strong and powerful. So the goat with one horn came and attacked ram. जो एक सिंग वाला ये बकरा आकर मेढ़ा को अटैक किया और इसको खत्म कर दिया। और ये बकरा इतना तेज आ रहा है, उसका पैर नीचे नहीं है, ऐसे उड़कर इतना तेज और इतना पावरफुली आ रहा है, वो आकर मेढ़ा को खत्म कर दिया, इसको पूरा finish off completely. This Medo-Persian Empire was completely finished off by the goat with one horn, who is Alexander the Great. एक बाद में क्या हो गया? So we are looking at content of the vision and interpretation also. I am telling the interpretation also. Okay. विशन भी बता रहा हूं मैं, उसका मीनिंग भी एक साथ बता रहा हूं। ये 2 और 3 अभी एक साथ बता रहा हूं मैं। अभी सिर्फ गोट के बारे में। अभी मेढ़ा को आकर क्या है? अटैक किया, उसको खत्म कर दिया। अभी क्या रह गया? बकरा रह गया। नाउ द गोट इज रिमेनिंग इन द विशन when we move forward. Don't talk.
who is got Greek Empire? लगभग 323 से लेकर 63 में रोम के लोग आकर कब्जा किया था पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन के ऊपर ग्रीक एम्पायर लगभग इतना समय, वो भी कुछ 200 इयर्स है, बीसी राज किया, अराउंड 200 इयर्स। अभी इसके बारे में क्या, पहला क्या था, एक सिंह था, वो इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। बाद में इसके बारे में लिखा है ये क्या हो गया, टूट गया, या इट वॉज डिस्ट्रॉयड, वो नाश हो गया या टूट गया। ये जो बड़ा और जो शक्तिशाली ये सिंह क्या हो गया, अपने आप, कोई आकर हमला नहीं किया, कोई आकर तोड़ा नहीं, इट वॉज डिस्ट्रॉयड और इट वॉज ब्रोकन बाय इटसेल्फ। अलेक्जेंडर का कहानी देखते, व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर, हाउ डिड ही डाई? Due to a disease, fever, it is written fever, we don't know what was the disease. So only around 10 or 12 years he was conquering the world. Within a short span of time he was conquering the entire world. थोड़े समय के अंदर, कुछ 10 या 12 साल के अंदर वो बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ कब्जा किया दुनिया का। पर अचानक when he was 32 or 33 years of old he died because of some disease. तो उस विषन में लिखा गया है, क्या है, सिंह टूट गया, इसका मतलब क्या है, अलेक्जेंडर डाइड। इस सिंह के जगह में क्या हो गया, 4 सिंह निकल कर आ गया। एक सिंह के जगह में क्या आ गया, 4 सिंह आ गया। तो ये इरेज करूं मैं, एक सिंह था वो टूट गया, उसके जगह में 4 सिंह निकल कर आ गए। मैं ऐसे ही ड्रॉ किया, 4 सिंह के बारे में लिखा है, वो 4 दिशाओं में, धरती के मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, बस 4 दिशाओं की ओर ये क्या है, सिंह फैला, मतलब सिंह बड़ा, मतलब जैसे एक बकरे को देखते समय 4 दिशा में नहीं जाते हैं ना सिंह, वही बोलते हैं अनयूजुअल इमेजरी, कुछ अलग अजीब इमेजरी के द्वारा एपोकैलिप्टिक लिटरेचर में। तो एक सिंह टूट गए, उसके जगह में क्या है, ये साधारण तौर पर हम नहीं देख सकते, ये एपोकैलिप्टिक विजन है। तो एक सिंह टूट गया जो अलेक्जेंडर है। अभी इसके जगह में क्या आ गया, 4 लोग आ गया। उसमें 2 लोगों के बारे में मैंने पढ़ा हिस्ट्री में, कौन कौन था, सेलूकस और टोलमी। जब अलेक्जेंडर मर गया, अलेक्जेंडर को कोई बच्चा नहीं था, कोई वारिस नहीं था। When Alexander died, he had no children to succeed on the throne. So what happened? He had lot of commanders. He had a very big army, and the army he has divided that army into different groups. Each group of armies had a commander in general. मतलब एक आर्मी के झुंड को एक लीडर था, कमांडर्स था। तो बहुत सारे थे, कुछ लोग बोलते 7 कमांडर्स थे, 8 झुंड थे, उसका 8 लीडर्स थे, 7 लीडर्स थे, जो भी हो। when Alexander died, these generals, these commanders of the army, they were fighting each other to gain power. If there were 7, they were fighting each other. अगर 7 था या 8 था, इन लोग आपस में लड़ रहे थे एक जगह को कब्जा करने के लिए। अलेक्जेंडर के बाद इन लोग आपस में लड़ रहे थे। बाद में 4 लोग बहुत पावरफुल निकला। उसमें से पहला है
कसांडर करके, कसांडर करके ये एक जनरल का नाम है, एक आर्मी का कमांडर का नाम है। तो ये कहाँ राज कर रहे थे, कहाँ कब्जा किया? मैसेडोनिया एंड ग्रीस। तो कसांडर इन एरिया, ये दोनों एरिया में कब्जा कर इधर राज किया। बाद में दूसरा सिंह लेसीमैकस करके दूसरा, लेसीमैकस करके दूसरा एक कमांडर, उसका इलाका था थ्रेस और एशिया माइनर। थ्रेस करके एक जगह था, मैप में दिखाया था ना मैं, थ्रेस भी था, एशिया माइनर भी था। अगर डाउट है तो आप खुद ढूंढ सकते हैं, ये सारे जगह सर्च कर सकते हैं। मैप इन द टाइम ऑफ डैनियल, बिब्लिकल मैप इन द बुक ऑफ डैनियल सर्च करेंगे तो मैप आएगा। अभी तीसरा था सेलूकस। सेलूकस कहाँ थे? बाबिलोन, सीरिया और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो बाबिलोन आएगा, सीरिया, मेसोपोटामिया, इसमें आएगा बाबिलोन। अभी चौथा कौन है बोलो? टोलमी। टोलमी कहाँ राज कर रहे थे? इजिप्ट। तो एक सिंह टूट गया, जो अलेक्जेंडर जो सबसे शक्तिशाली था। ये सिंह ने किसको मारा था? मेढा को। ये अलेक्जेंडर, ये जो एक सिंह ने किसको मारा था? मेढा को मारा था। उसके बाद क्या हो गया? ये खुद टूट गया। उसके बाद उसके जगह में चार सिंह निकला। पहला है, ये चार सिंह किसको दर्शाता है हिस्ट्री में? चार जो अलेक्जेंडर का आर्मी का चार जनरल्स या कमांडर्स को दिखाता है। उसमें एक है कसांडर करके, मैसेडोनिया और ग्रीस में राज कर रहे थे। दूसरा है लेसीमैकस करके, थ्रेस और एशिया माइनर। तीसरा है सेलूकस, सीरिया और बाबिलोन में। चौथा है टोलमी, जो इजिप्ट पर राज कर रहे थे। इतना समझ में आ गया? सबको क्लियर है? कोई डाउट है? किसका? मुझे लग रहा है बाबिलोन में, वो हिस्ट्री नोट में दिया है। जब वो बाबिलोन में था, अलेक्जेंडर के बाद, मतलब उन इलाका के ऊपर वो इलाका, मतलब बाबिलोन, सीरिया, उस एरिया को कब्जा किया। तो उधर उस एरिया को वो राज कर रहे थे, सेलूकस। ठीक है। तो अलेक्जेंडर के बाद पहले फलस्तीन किसके हाथ में था? टोलमी के हाथ में था। टोलमी कुछ 100 साल तक फलस्तीन के ऊपर राज किया। उसके बाद सेलूसिड किंग, सेलूसिड डायनास्टी का, या सेलूकस एक जनरल है। उनके पीढ़ी में जितने राजा आया उसको क्या बोलते हैं? सेलूसिड्स बोलते हैं। जनरली दे वर कॉल्ड एज सेलूसिड्स। तो तीसरा जो सेलूसिड किंग था, एंटियोकस III, उसने आकर क्या किया? टोलमी के साथ या इन लोगों के साथ युद्ध किया और फलस्तीन को कब्जा में ले लिया। उसके बाद आया एंटियोकस IV एपिफानस, जो पागल आदमी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो यहूदी लोगों को सताया। मकाबिन रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, टेम्पल रीडेडिकेशन के बारे में हमने देखा हिस्ट्री में। तो 100 साल टोलमी के अधीन में ठीक था, कोई सताव कुछ नहीं था। फिर सेलूसिड किंग एंटियोकस III ने यहूदियों को या फलस्तीन को कब्जा किया। उसके बाद एंटियोकस IV आया। तो इस विषय में ऐसा एक बात लिखा है, इस चौथे सिंह, मतलब
ये 4 सिंह के बारे में बोला, इनके बीच में से एक और सिंह निकल कर आया, उसके बारे में बोला छोटा सा एक सिंह, लिटिल हॉर्न करके एक शब्द आप लोग देखेंगे। लिटिल हॉर्न कहां से निकला? सेलूसिड से। ये नहीं सेलूसिड से निकलेगा करके नहीं लिखा है। देयर आर 4 हॉर्न्स, फ्रॉम among them there will arise a little horn who will be persecuting the people of God। जैसे हम सातवें अध्याय में देखा, जो मॉन्स्टर से 10 सिंह निकला, उसके बाद 11वां एक सिंह निकला। वो 11वां जो सिंह, जो छोटा सा सिंह क्या कर रहे थे? परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे, उनको सता रहे थे। वैसे ही इस विषय में भी इन चैप्टर 8 ऑल्सो देयर इज ए लिटिल हॉर्न विच इज persecuting and oppressing the people of God। In 7th chapter also we see a little horn which is very arrogant, which comes out of the 4th animal, the monster animal, and persecutes the people of God. Then after that God judges that little horn and Son of Man receives the authority। In chapter 8 also there is a little horn which arises from these 4 horns, and that small horn is persecuting the people of God। वो किसको दर्शाता है? एंटियोकस एपिफानस जब यहूदी लोगों को सताया, तो छोटे सिंह जो निकला वो कौन है? एंटियोकस एपिफानस 4 है। उसने क्या किया? वो सारे हिस्ट्री मैंने नहीं दोहराऊंगा, आप लोगों को पढ़ाया है क्या क्या उसने किया। पूरे रूप में जूइश हिस्ट्री को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए वो बहुत कुछ, जूइश धर्म को क्या किया? बैन कर दिया। कोई भी यहूदी धर्म फॉलो नहीं कर सकते, ग्रीक कल्चर फॉलो करना करके नियम लेकर आया था कौन? तो इधर से एक और छोटा सिंह निकला, वो है एंटियोकस। इसके बारे में मैं ग्रीक एम्पायर का नोट्स में दिया है, सेल्यूसिड रूल उस टॉपिक के अंडर। आप जो जिसको डाउट है वो टॉपिक वापस जाके पढ़ सकते क्या क्या हुआ एंटियोकस 4 का समय में, ठीक है। तो ये लिटिल हॉर्न क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहे थे? सताया। मंदिर में क्या किया? मंदिर को नाश किया। मंदिर में जो बलिदान जो हो रहा था, जो आराधना बलिदान ये सब कुछ जो मंदिर में हो रहा था, उसको क्या किया? रोक दिया गया। बहुत कुछ जो सच्चाई को क्या किया? कुचल दिया करके लिखा है। आप लोग पढ़ा है ना, मैंने शुरुआत से बोल रहे थे 8 अध्याय पढ़ो, मतलब जो 7 से लेकर 12 अध्याय तक पढ़ो। आज बैठकर पढ़ना, ये क्लास के बाद आप लोग आराम से बैठकर पढ़ना, तब ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एंटियोकस आकर बहुत कुछ जो हिस्ट्री आप लोग पढ़ा वो सब कुछ किया, तब आकर क्या हुआ? तो ये सब कुछ हो रहा था, दो स्वर्गदूतों के बीच में बातचीत हो रही है, ये सब होगा करके। तो एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से ये पूछ रहा है, कब तक ये छोटा सा सिंह, जो एंटियोकस एपिफानस नाम तो नहीं लिखा है, जो छोटा सिंह कब तक परमेश्वर के लोगों को क्या करेगा? सताएगा। ये सब कुछ जो ये कर रहा है, हाउ लॉन्ग? So the angel is asking to another angel, another heavenly being, how long this will happen? How long the people of God will be persecuted? How long the temple of God, the worship of the Lord, the sacrifices that were happening in the temple will be stopped? All these things for how long? कितने देर तक, कब तक ये सब कुछ होगा करके एक सवाल कौन पूछ रहा है? एक एंजल दूसरे एंजल से। उसके लिए एक जवाब आया। क्या है जवाब? कोई पढ़ सकते, कोई देखकर बोल सकते कितना दिन तक होगा ये सब? लुक एट योर बाइबल चैप्टर 8 एंड से हाउ लॉन्ग, कितने कब तक, कितने समय तक ये सब कुछ होगा? हाउ मेनी डेज? 2000। तो इधर गोट है, गोट से एक सिंह निकला, उसका टूटने के बाद
4 निकला। तीन सेल्यूसिड, इसमें से एक और छोटा सिंग निकला, लिटिल हॉर्न। वो कौन था? एंटियोकस एपिफानस, एंटियोकस 4 एपिफानस। एंटियोकस 4, इसने क्या किया? परसिक्यूटेड ज्यूस। और क्या क्या किया? बैंड जूइश रिलीजियन। बैन, बैन मतलब क्या है? मना, BANNED। बैन करना मतलब क्या है? मना करना। ये क्या है? जैसे बैन करने का मतलब क्या है? बंद कर देना। अब बंद करना, ये सब। तो परसिक्यूटेड ज्यूस, बैंड जूइश रिलीजन कौन किया? एंटियोकस 4 ने किया। अब ये सब देखकर, ये विशन में ये सब कुछ देखकर स्वर्गदूत क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग, कब तक? ये सब क्यों हो रहा है करके नहीं पूछा, पर सवाल क्या था? कब तक? ये कहीं और सुना है आप लोग? कब तक ये शब्द? साम्स पढ़ रहे हैं आप लोग? साम्स में भी है, कई सारे साम्स में भजनकार क्या पूछ रहा है? कब तक? मतलब जो सताव, जो पीड़ाएं, जो मुश्किल भरी परिस्थिति से होकर भजनकार जा रहा है, उसके बारे में परमेश्वर से क्या पूछ रहा है? ये कब तक ये सहना पड़ेगा? कब तक ये सब कुछ? दुश्मन हमारे ऊपर क्या है? ये दुश्मन लोग के अधीन में कब तक हम रहे? अलग अलग भजन संहिता में ये सवाल आप लोग देख सकते हैं। कब तक? इधर इंसान नहीं पूछ रहा है, स्वर्गदूत पूछ रहा है कब तक। मुझे लग रहा है 19 आयत में, कोई पढ़ सकते हैं 19? 14 में स्वर्गदूत जो पूछ रहा है कब तक। ठीक है, 14 पढ़ो। तो उसने मुझसे कहा, जब तक 7 वर्ष तेरा 2000। वो सवाल कहाँ आता है? कब तक? Then I heard a holy one speaking at 13 में? Munima, ओके, and said to the one who spoke, for how long is the vision concerning the regular one darkness place that make the sword and the given over the sanctuary and host to be trained underfoot. And he said to me, for 2,300 evening and morning, then the sanctuary shall be restored to its rightful state. बस हिंदी में पढ़ सकते कोई ऊंची आवाज में? तो मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। पवित्र जन मतलब स्वर्गदूत को बोलता है। फिर एक और पवित्र जन ने उससे पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया। नित्य होम बलि मतलब वो रोका, होम बलि क्या है? बंद किया गया। उजाड़ने वाला वो चीज क्या है? मैंने बोला हिस्ट्री में क्या बोला हमने? व्हाट इज दिस? उजाड़ने वाला घृणित वस्तु वो क्या है? एंटियोकस एपिफानस ने मूर्ति को, ज़्यूस देवता का मूर्ति को कहाँ रखा? यरूशलेम मंदिर के अंदर रखा। पोर्क को क्या है? पिग को क्या है? सैक्रिफाइस। सुअर को, सुअर यहूदी लोगों के लिए घृणित वस्तु है। सुअर को क्या है? बलिदान किया, उन लोग को खिलाया सुअर का जो मीट, बहुत कुछ किया। तो ये सताव, ये सब कब तक होगा करके जब पूछा, क्या बोला? 2000 इवनिंग्स।
ये था जवाब। अभी इसको क्या है करके हम समझेंगे। क्या है ये 2300 मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स? ये क्या है? दिस इज द टाइम पीरियड ऑपरेशन। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब क्या है? सताव या दबाव, ऑपरेशन या परसिक्यूशन। कौन किसको कर रहा है? एंटियोकस, ये लिटिल हॉर्न परमेश्वर के लोगों को कर रहे हैं, या हिस्ट्री देखते समय एंटियोकस एपिफानस यहूदी लोगों के ऊपर सताव कर रहे हैं। सो व्हाट इज 2300 मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स? इट इज द टाइम ऑफ persecution. Who is persecuting whom? The little horn is persecuting the people of God. Or in history we can say Antiochus Epiphanes is persecuting Jewish people. अभी क्या है ये? इसको कैसे समझना है? ये जो नंबर को कैसे समझना है? इसके बारे में दो विचारधारा है, दो ओपिनियंस है, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। There are two views regarding this 2300 days. पहला व्यू में हम ऐसे देख सकते हैं, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स लिखा है, इसका मतलब यह है यहूदी लोगों के बीच में इट इज रिटन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, 2300 मॉर्निंग्स एंड इवनिंग। सो एक व्यू के क्या है, एक व्यक्ति के, एक वैज्ञानिक के अनुसार ऐसा है, ये मॉर्निंग और इवनिंग इसलिए दिया गया है, व्हाई दिस मॉर्निंग एंड इवनिंग इज रिटन विद दिस 2300 days, क्योंकि among the Jewish people sacrifice is made, the regular sacrifice is made in temple morning and evening. यहूदियों के बीच में जो होम बलि, जो बलि हर दिन जो करते हैं वो दो टाइम करते थे, सुबह और शाम, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग लिखा गया है। तो एक स्कॉलर ने, एक वैज्ञानिक ने ऐसा बोला, ये 2300 ये डेज नहीं है पर सैक्रिफाइसेस है। क्या है? सैक्रिफाइसेस मतलब एक दिन में 2 सैक्रिफाइस होता है। अगर ऐसा है तो 2300 सैक्रिफाइस करते समय कितना दिन आएगा? डिवाइडेड बाय, समझ में आया? नहीं आया? मतलब ये 2300 मतलब हम सबसे पहले क्या सोचेंगे? ये दिन है, 2300 दिन है करके सोचेंगे, पर एक वैज्ञानिक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है ये दिन नहीं है, पर क्या है, इसके साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग लिखा है, सुबह और शाम लिखा है। इसका मतलब यह है यहूदियों के बीच में दिन में 2 बार होम बलि होता है। सो वन स्कॉलर सेज दैट 2300 is not the literal days, it is not just days. Among the Jewish people, 2 times offerings were offered in the sacrifices were offered in the temple twice a day, morning and evening. So 2300 is not the number of days, but it's the number of sacrifices. So this persecution and oppression of Antiochus Epiphanes, how long it will take? How long it will be there? It will be there till 2300 sacrifices happen. ये कब तक होगा ये सताव? जब तक 2300 बलिदान या सैक्रिफाइस का जो टाइम है, 2300 जो होम बलि कितने टाइम में होगा, उतना टाइम तक क्या होगा? होम बलि बंद किया गया, 2300 बलिदान, होम बलि चढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम तक क्या रहेगा सताव? तो एक दिन में 2 बलिदान है तो 2300 या 2300 बलिदान कंप्लीट, ये होम बलि कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? एक दिन में 2 है तो क्या है? एक दिन में 2 है तो 2300 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं?
हाँ, क्योंकि एक दिन में 2 है तो 2300, मतलब ये मैक्स क्लास नहीं है, आप डरना नहीं, पर ये सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। तो एक दिन में 2 बलिदान, 2 होम बलि अगर यहूदी लोग करते हैं तो 2300 बलिदान कितने दिन में होता है? 150। ये दिन है, ठीक है। तो 1150 दिन में इतना बलिदान कंप्लीट होगा, समझ गए? तो ये 2300 मॉर्निंग्स एंड इवनिंग, मतलब 2300 sacrifices which will be completed in 1150 days। तो 2300 होम बलि कितने दिन में कंप्लीट होगा? एक दिन में 2 करके 1150 दिन में खत्म होगा। तो इतना समय तक क्या रहेगा? सताव, अंत्योखस एपिफानस का सताव रहेगा करके लिखा है। अगर ये दिन को आप सालों में और महीनों में बदलेंगे तो कितना मिलेगा आपको? लगभग 3 साल 2 महीने मिलेंगे, ठीक है, लगभग। तो इस आंकड़े के अनुसार जो वैज्ञानिक ये बोला, ये विचारधारा बोल रहा है, वो बोल रहा है ये हुआ 167 BC से लेकर 164 BC तक। ये इधर क्या हुआ? आप लोग एग्जाम लिखा था, 167 BC में क्या शुरू हुआ था? What happened in 167 BC? That is in 164। ये क्या इम्पोजिशन लिखा आपको? मकाबियन रिवोल्ट। मकाबियन रिवोल्ट शुरू किया कब? मोदीन विलेज में मटत्यास। ये सारे घटना मैंने बताया। राजा का कुछ ऑफिसर्स आ गया, मटत्यास से क्या बोला? सम ऑफिसर्स केम फ्रॉम द किंग, दे टोल्ड मटत्यास टू ऑफर sacrifice to Zeus. Mattathias denied. Another Jew was willing to do the sacrifice, so Mattathias killed that Jew and also one of the king's officers, and he fled. वो भाग गया कहाँ? अपना बेटों को लेकर पहाड़ों पर भाग गया। वो विलेज का नाम क्या था? मोदीन करके एक विलेज। तो मकाबियन रिवोल्ट started in 167 BC। उधर से लेकर 164 में क्या है? रीडेडिकेशन ऑफ द ये किसके अंडर में हुआ? जॉन करके। ये कौन था? मटत्यास का बेटा था। इसका दूसरा नाम था मकाबीस। जॉन था, जूदस, सॉरी, सब चुप बैठा है। जूडस मकाबीस, इसका दूसरा नाम है। मकाबीस का मतलब क्या है? हथौड़ा। तो इस 167 से लेकर 164 तक लगभग ये गिनती आता है। 3 साल का कुछ गिनती आएगा। तो इस एक वैज्ञानिक कुछ लोगों के अनुसार इसका मतलब क्या है? कहां से लेकर कहां तक? ये जो 3 साल 2 महीने कब हुआ? 167 से लेकर 164। मकाबियन रिवोल्ट, मकाबियन जो युद्ध हो रहा था उससे लेकर मंदिर को पुनर्स्थापना या पुनः समर्पण करने तक, उस समय को के बारे में बताते। हाउ लॉन्ग, इतना समय का क्या रहेगा? सताव और पीड़ा रहेगा करके कौन बोला? स्वर्गदूत ने बोला। स्वर्गदूत सिर्फ नंबर बोला, हम मतलब निकाल रहा है। स्वर्गदूत ये सब कुछ नहीं बोला, हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी एक ही साइड हमने देखा, अभी कुछ लोग और भी बता रहा है, कुछ और आंकड़े भी बता रहे, वो भी बोलकर मैं खत्म करूंगा, फिर दोपहर को या रात को बाकी हम देखेंगे। तो इतना समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट?
आरुष को जब वो ग्रीक एम्पायर के बारे में समझ में आएगा और समझ में आएगा इसके बारे में, ठीक है। इतना तो थोड़ा तो बहुत समझ गया होगा। समझ गया सर, लेकिन ये अभी आप बोले यार, ये सब आप 3 ईयर के नीचे जो है ना 167 को इसलिए अचानक से आ गया, तो शायद वो अचानक नहीं आया, आप जब क्लास सुनेंगे ये कनेक्शन है, ये हिस्ट्री सब कुछ मैंने पढ़ाया है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, विजन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप क्लासेस सुनो, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मेरे पास आओ, ठीक है। इतना समझ गए। तो ये जो पीरियड है मकाबिन रिवोल्ट से लेकर मकाबिन आर्मी किसके साथ युद्ध कर रहे थे? एंटियोकस एपिफानस के साथ। उसने क्या किया था? जूइश धर्म को बैन किया था। एंटियोकस एपिफानस बैंड जूइश रिलीजन, सो मकाबिन्स वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट देम। तो ये है 2300 सैक्रिफाइसेस। हाँ, आपने बताया वो 2300 सैक्रिफाइस, उसके बाद में बातें हुई, उसको दिन के हिसाब से दिया या सैक्रिफाइस हुआ? दिन के हिसाब से दूसरा व्यू आ रहा है, एक और विचारधारा है इसके बारे में। मैं ये नहीं बोला ये सही है। हाँ, वैज्ञानिक भी बोला है ना। बोला था मैंने, हाँ वो वैज्ञानिक ने बोला तो वो सच में वैसे उतने हुआ था क्या? हुआ था, यही हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सैक्रिफाइस तो उस टाइम में नहीं 2300 सैक्रिफाइस मतलब इतना हुआ नहीं। वो समय 2300 सैक्रिफाइसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उतना टाइम क्या रहेगा, ये नहीं कर, ये सैक्रिफाइस होना चाहिए, समझ गए। 2300 होम बलि या जो सैक्रिफाइस होने का जितना टाइम लगेगा उतना टाइम सताव रहेगा। होम बलि तो बंद किया किसने? ये नहीं इतना बलिदान होना है, समझ गए। आई होप यू अंडरस्टूड, यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। Any doubt you have? Okay. So this is the thing. Now the second view. Can I erase the board? दूसरा ओपिनियन, दूसरा कुछ वैज्ञानिक लोग ऐसे बोलता है 2300 लिटरल डेज। लिटरल मतलब अक्षरिक रूप में। लिटरल मतलब क्या है? 2300 दिन। लिटरल मतलब अक्षरिक रूप में ऐसा है लिटरल। तो इन कुछ वैज्ञानिक लोगों के अनुसार ये सैक्रिफाइसेस का नंबर नहीं है, पर क्या है? अक्षरिक रूप में दिन के बारे में बताया है, 2300 दिन। सो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स 2300 is not the number of sacrifices, but it refers to literal days, 2300 days. So if we take this as literal days, तो सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग एक साथ लिया गया, एक मॉर्निंग और इवनिंग मिलकर एक दिन हो गया, तो लिटरल डेज हो गया। तो इसके अनुसार ये कितना साल का टाइम है? 1150 जब हम पिछला व्यू में निकला, 3 ईयर और 2 मंथ्स निकला। तो इसको साल में बदलेंगे तो कितना है? 6 साल और 4 महीना मिलेगा। इसका डबल है ये, समझ गए? ये 6 साल और 6 ईयर 4 मंथ्स, समझ गए? कोई डाउट है इसमें? 2300 लिटरल डेज अक्षरिक रूप में दिन के रूप में हम गिनेंगे तो 6 साल, ये 2300 दिन साल में बदलेंगे तो 6 ईयर, 6 साल और 4 महीने आएगा। तो ये हिस्ट्री में कहा देख सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक लोगों के अनुसार एंटियोकस एपिफानस कब राज में आया? 170 या 171 या 170 BC में पावर में आया, मतलब अपना राज में आया। तो उधर से लेकर क्या शुरू हुआ था? धीरे धीरे सताव
शुरू हुआ था, इस 170 में एक घटना हुआ, ओनेयास करके एक महायाजक को क्या कौन मार दिया, ये लिखने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूं। ओनेयास करके एक महायाजक को कौन मारा, एंटियोकस एपिफानस ने 170 बीसी में मार डाला था। जो उस समय का महायाजक होना था, इसको मारकर जो ज्यादा पैसा दिया उसको क्या बनाया, क्योंकि महायाजक के पास था सारा अधिकार। सो व्हाट हैपेंड इन 170 BC व्हेन एंटियोकस एपिफानस केम टू पावर, ही किल्ड a high priest called Onias because he was the right candidate to become high priest, but taking bribe from others, he made some others as high priest. So he was killed. So from that time onwards, persecution started from 170 BC. इधर हम बोल रहे थे 167 से मक्काबियन रिवोल्ट के बारे में बोल रहे थे, पर ये थोड़ा पीछे की ओर खींच रहा हूं। जब एंटियोकस एपिफानस पावर में आया, जब वो राज करने के लिए शुरू किया था, उधर से ले रहा वो डेट, दूसरा व्यू में। अभी इधर से कहां तक, मंदिर का पुनर्स्थापना तक, rededication of the rededication of the temple। तो इधर 160 से लेकर 164 लिया पहला व्यू में। दूसरा व्यू में 170 जब एंटियोकस एपिफानस राज करने शुरू किया, उधर से लेकर rededication of the टेम्पल तक, ये लगभग कितना साल हो गया, 6 साल का टाइम हो गया, समझ गए। ये पीछे की ओर आ रहे हैं, बीसी है, समझ गए। 171 या 160 से लेकर पीछे की ओर जाते समय लगभग ये गिनती मिलता है आपको, ये नहीं एक्सैक्टली, लगभग इतना मिलेगा। तो कुछ वैज्ञानिक लोगों के अनुसार 2300 दिन के रूप में गिनना है बलिदान, या होमबलि के रूप में नहीं, दिन के रूप में गिनना है। वो कहां से कहां तक, 170 से लेकर जब से एंटियोकस एपिफानस राज करने लगा, उधर से मंदिर का पुनर्स्थापना। तो ये क्या है, इस विषय में लिखा है तब अंत आएगा, जब ये गिनती खत्म होगा, 2300 दिन या बलिदान जो भी है, जब ये नंबर खत्म होगा तब क्या आएगा, द एंड विल कम, अंत आएगा। अंत मतलब सुनते हुए हम क्या सोचेगा, मसीह आने का नहीं, अंत मतलब सताव का अंत। सवाल क्या था, हाउ लॉन्ग, कब तक ये रहेगा, तो उसका अंत कब आएगा। ये गिनती जब खत्म होगा, ये समय जब खत्म होगा, तब क्या होगा, अंत होगा। मतलब मंदिर का पुनर्स्थापना उस समय, लगभग उस समय पर क्या हुआ, अंत हो गया। और जूडस मकाबियस अपना सेना के साथ अंदर आया, धीरे धीरे उन लोग कब्जा करने लगे। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, पर मेनली क्या है, 164 में कौन मरा, एंटियोकस एपिफानस मर गया, वो भी बीमार हो गया। और इस विषय में लिखा है वो कैसे मरा, इंसान के हाथों से नहीं, परमेश्वर उसको। तो एंटियोकस एपिफानस पर्शिया के साथ युद्ध करने के लिए गया था 164 BC में। एंटियोकस एपिफानस हैड गॉन फॉर ए वॉर कैंपेन इन द पर्शियन रीजियन। तब क्या हुआ, वो बीमार होकर, आई हैव रिटन इन द नोट्स इन द हिस्ट्री, सेल्यूसिड हिस्ट्री, यू कैन सी, ही डाइड बिकॉज ऑफ ए not fever, it is with Alexander. So Antiochus, for some disease, he had some disease and he died. तो इंसान नहीं मारा, परमेश्वर के हाथों से। लिखा है विषन में, आप लोग बाद में पढ़ के, इतना समझ में आया सबको। So what all we discussed, we were discussing about the vision of the 8th chapter. So what is the vision? 2 animals in the beginning. First one is ram with 2 horns. One horn is shorter, which shows Media. The second horn is larger, which denotes Persia. And what happened? Then there came this ram was very powerful animal. It was
ट्रैम्पलिंग अदर नेशंस, वो बाकी राज्यों को कुचल रहे थे, उनको कब्जा कर रहे थे। बाद में एक बकरा, इन द विजन देयर कम्स ए goat with one horn, one powerful horn. On that one horn there was one eye. उसके बारे में नहीं बोला। उस सिंह के एक सिंह जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो सिंह था, उसके ऊपर एक आंख था। आंख किस चीज को दिखाता है? बुद्धि और क्या है, ज्ञान को दिखाता है आंख। इल्यूमिनाटी सुना है? इल्यूमिनाटी तो ज्ञान को दिखाता है। सिंह के ऊपर आंख। इल्यूमिनाटी नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है? ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। तो बाद में क्या हो गया, ये गोट comes and attacks this ram and this ram is completely destroyed. अभी ये after some time this one horn between the eyes of the goat, ये सिंह कहाँ था? आंखों के बीच में था और सिंह के ऊपर भी एक आंख था। उस सिंह क्या है, the horn was broken and in the place of that one horn, four horns came up. Four horns arose. उस एक सिंह के जगह पर चार सिंह बाहर मतलब निकल कर आया। वो चार से सिंह क्या है? अलेक्जेंडर के बाद चार उनके कमांडर्स राज कर रहे थे। एक कसांडर है, दूसरा लिसिमैकस करके, तीसरा सेलूकस, टोलमी। और बाद में एक और छोटे सिंह निकल कर आए। वो कहाँ से? सेलूकस से। वो कौन है? एंटियोकस एपिफानस। उसने क्या किया? उसके बारे में लिटिल छोटे सिंह बताया गया है। वो बहुत क्या है? अहंकार, बहुत क्या है? घमंड करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध भी घमंड करते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध भी घमंड करते हैं। और क्या है? उसने क्या कर रहे थे? what he was doing? He was persecuting and oppressing the people of God. Then what happened? So the angels were speaking to each other and asking how long this will. So how long? What is the answer of how long? 2300 mornings and evenings. So there are two meanings given by difference. Some scholars, some कुछ वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? This 2300 is the number of sacrifices. जब 2300 होम बलि का समय खत्म होगा, मतलब एक दिन में 2 बलिदान करके गिनेंगे तो 3 साल और 2 महीने। उस व्यू के, उस विचारधारा के अनुसार क्या है? समय क्या है? 167 से लेकर 164 तक, मकाबियन रिवोल्ट से लेकर मंदिर का पुनर्स्थापना, पुनः समर्पण तक। तो ये है पहला व्यू। सेकंड है 2300 जो अक्षरिक रूप में, उसका दिन के रूप में गिनना है। दिन के रूप में गिनेंगे तो 6 साल और 4 महीने लगेंगे। वो कब से लेकर कहाँ तक गिनना है? जब एंटियोकस एपिफानस IV राज करने के लिए शुरू किया, उधर से लेकर मंदिर का पुनर्समर्पण तक लगभग 6 साल लग जाता है। ये 2 व्यू है जो आपको, जो मैं बोलूंगा ये थोड़ा और ठीक है। दूसरा तो अलग अलग विचारधारा है इसके बारे में। दूसरा लेना, क्योंकि वो जब से एंटियोकस राज करने लगा, एंटियोकस का मौत तक, तो वो लेना थोड़ा सा और सही रहेगा करके मुझे लग रहा है। तो इतना है आज का क्लास। ओके, यू कैन कट द वीडियो। सो एनी